कुछ पाने की हो आसपास कोई अरमा हो जो खास खास आशा हर कोशिश में हो हर बार करे दरियाओं को आर पार आशा तूफानों को चिर के मंजिल Yes, Yaro. I hope you guys are doing great, and I'm very glad to see you all. And just एक brief introduction देते हैं, उसके बाद में हम बहुत सारी बातें करेंगे और शुरू करते हैं. आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा because I know majority of you are undergoing your एकदम rigorous articleship या उससे भी ज़्यादा काम वगैरह, तो मैं समझ सकता हूँ समय के बारे में. However, you guys are those who've killed it in examination. जिस चीज को बच्चे एक एम की तरह देखते हैं, मेजोरिटी बच्चे इस प्रकार से देखते हैं कि आप लोग, आपका जन्म ही अलग हुआ था, आप लोगों का बॉर्न एंड ब्रॉट अप एक अलग तरीके से हुआ है, एंड यू स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1. ऑल ऑफ योर दोस्त जिन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट्स के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दैट इज कमेंडेबल. ऑल इंडिया रैंक 1, इवन ऑल इंडिया रैंक्स, दे आर नेवर अ फ्लूक. इट कैन नेवर बी अ फ्लूक. एंड AIR 1 है तो मतलब देयर मस्ट बी समथिंग दैट यू गाइस नो, जो कि आई थिंक सब लोगों को पता हो तो अच्छा है. एंड साथ ही साथ जो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहा है उनको पता हो तो अच्छा है. तो आपसे बहुत बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है मुझको, कम से कम समय में बहुत सारी बात करने की कोशिश करूंगा. बट सबसे पहले बहुत 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 सारा स्वागत है आप सब लोगों का यहाँ पे. तो गुंडे, सबसे पहले थोड़ा सा आर्टिकलशिप के बारे में बात करता हूँ. भूमि को छोड़ के एवरीवन एल्स इज एक्सपीरियंसिंग आर्टिकलशिप, तो उस बारे में बात कर ही सकते हैं. एंड देयर आफ्टर वी कम ऑन टू कि आपने प्रेपरेशन में क्या किया था, एंड एक बहुत अहम चीज कि एग्जाम के 7 डेज में आपने कैसे मैनेज किया था, so that hundreds and thousands of kids can at least get some idea. वैसे भी कभी भी किसी के भी प्लान को आप कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट अगर आपको थोड़ा भी आइडिया लग जाता है तो आप थोड़ा कुछ गलत चीजें करने से थोड़े इंप्रोवाइज कर सकते हो अपने प्लान को. तो सबसे पहले मैं लेता हूँ श्रुति जी पे, आप पे. श्रुति जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड सर. यस, आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी है, राइट? यस सर. यस. एंड आपने आर्टिकलशिप कहाँ की थी, क्या आइडिया था ऐसा? In Pune itself, I did from 𝐬𝐞𝐬 Pharmaceuticals Limited. Okay. It was an unlisted company at that time, and I experienced about the IPO process in that company during my articleship. So when you were undergoing the articleship, that time the company got listed? No, sir, it did not get listed, but it was in the process of getting listed. It was the and process after I completed my articleship, within like 3 months, it got listed. Okay, within 3 months it got listed. Nice. And when you had a wonderful rank वगैरह, so you could have joined any company. So why did you choose you chose an unlisted company to join? So actually, I knew that it was in the process of being listed, and I was interested in knowing the process itself from the very from the very beginning, how it went through the entire process of IPO. So that's why I chose an unlisted company. अरे बेहतरीन स्पीक. एंड कैसा एक्सपीरियंस रहता है, मतलब व्हेन यू एज अ रैंकर यू जॉइन द फर्म फॉर एन आर्टिकलशिप वगैरह, तो कैसे एक्सपीरियंस, थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट रहता है या फिर सब बराबर है थोड़े दिनों बाद, कैसा रहता है? Sir, I was the means we were 2 trainees at that time. So after 6 months, the other trainee also left. So I was the only trainee for the entire, the entire articleship. So I got to learn about the company itself, the 𝐬𝐞𝐬 and its subsidiaries, how the compliances are done and all that. So you're the only article trainee there? Yes, sir. हे भगवान, सही है. राशि, moving on to you. Yes, sir. कहाँ चल रही है? Sir, my articleship is at Aadhar Housing Finance Limited. It's an housing finance company. Delhi? No, sir. Mumbai. Yes, Mumbai. And it has ऐसा exposure क्या रहता है? Sir, at the beginning of my articleship, I got exposure to debt compliances. So NCD, private placement listing, and on the BSc NSc both, commercial papers listing, even public NCDs. I got exposure to public NCDs, and post that now I'm into board meetings, minutes, quarterly compliances, half yearly, yearly compliances. So my reason of choosing Aadhar Housing was that if you choose some big, very listed conglomerates, you get a specific department, like you'll get an investor relations department, so you will be doing the IPF forms only, or otherwise you'll be getting the board meeting department. So I didn't want to restrict myself to some specific departments. So I chose some mid-level company
where I could get exposure in my hands to all the compliances, all different compliances. So I also got a little bit of AGM compliances. I got to know how AGM is conducted. So many people asked me, even in my company, they are like कि अब यहाँ क्या कर रहे हो, आप तो रैंकर हो, अब कहाँ यहाँ आ गए, आधार कैसे चूज कर लिया था? I was like, नहीं, my reason of choosing was कि I wanted to learn at this is the growing stage. So बाद में तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, Reliance, Tata. We had offers at the start, but I was like, नहीं, at the beginning I would like to go somewhere in a mid-sized company and learn. Post that I have opportunity in hand. Like, that's great. And if जो non-convertible debt की listing है ना, it's a very popular thing these days. A lot of companies want to do it and then the way they rotate funds and they need people to be good at it. मतलब बहुत ही common हो रहा है NCD listing वगैरह. NCD listing. Yes, it's a nice exposure that you've had. और एक और बहुत जबरदस्त चीज पता है क्या है कि जैसे कि मेजोरिटी बच्चे जब वो मिलते हैं ना, तो बच्चे ऐसे एम करते हैं आजकल लिस्टेड कंपनी ही चाहिए. जिसके पास ऑप्शन होता है ना, तो वो ज्यादा फेयरली सोच पाता है that whether I want a listed company or I want an unlisted company, when you have the option. When people are short of options ना, तो they just ऐसा होता है ना, नहीं मिल रहा है वो चाहिए. And तो वो एक unnecessary का एम कर देते हैं. And I think आप सब लोगों में ज्यादातर लोगों ने कंपनी में आर्टिकलशिप किया. However, last time I was talking to a few rankers, they had done their articleship from a firm because they had different perspective. So I think ऐसा straight formula नहीं बना सकते कि हर एक व्यक्ति को एक टॉप लिस्टेड कंपनी में ही जाना है. जैसे कि मानिया is unable to join because of traveling, but if she joins, she is done her articleship from Reliance. तो उसका अपना एक एरिया है, but you need to understand कि आपको क्या चाहिए. राशि तुम्हारी. Yes. भूमिका जी, coming to you. Where are you doing your articleship? I'm doing my articleship from DLF Limited. तो ये गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है, तो मैं वहां से कर रही हूँ. कैसे एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपोजर है? अभी तक तो बहुत अच्छा है. इनिशियली तो सेक्रेटेरियल कंप्लायंसेस वगैरह में होता था, और अभी मेरा जो डिपार्टमेंट थोड़ा सा वो शिफ्ट हो गया है IPF और इन्वेस्टर रिलेटेड मैटर्स में. ओके. एंड क्या कारण वो ज्वाइन करने का? मतलब आपको तो एग्जीक्यूटिव AR1, प्रोफेशनल AR1, तो आपको तो अलग ही कॉल्स वगैरह सब आए होंगे. सो एनी पर्टिकुलर रीजन ऑफ गोइंग टू दिल्ली या फिर ऐसा? हाँ, एक थोड़ा लोकेशन प्रेफरेंस था कि इनिशियली मुंबई पुणे नहीं आना था, तो फिर वो दिल्ली गुरुग्राम वाला एरिया था. और क्योंकि ये अच्छी लिस्टेड कंपनी थी, इसमें ऑलमोस्ट 110 सब्सिडरीज हैं, तो ये था कि सब्सिडरीज ज्यादा हैं, तो किसी ना किसी सब्सिडरी में कुछ ना कुछ काम तो होता रहेगा, तो उस चीज का एक्सपोजर मिलता रहेगा. तो एक ये रीजन था. और ऊपर से जो मैंने सबसे बड़ी जो गलती करी थी, वो ट्रेनिंग के टाइम पे ही करी थी. आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन वेस्टिंग, कि मैं ना अच्छी से अच्छी सोच रही थी कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये. और एक और चीज जो मैंने गलती की वो ये था कि आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द ट्रेनिंग आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ प्रोफेशनल केम आउट, जबकि आइडियली आई शुड हैव स्टार्टेड आफ्टर आई गेव माय प्रोफेशनल रिजल्ट वो एग्जाम्स. हाँ, फेयर, एक्चुअली सही बात है. बट दैट्स मतलब जनरली कैसा है, टाइम वेस्ट हो गया. आपने दिसंबर अटेम्प्ट दिया था या फिर जून अटेम्प्ट? जून अटेम्प्ट. जून ना, तो जून में जनरली यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम दैट इज देयर. ऐसा सम एक्स्ट्रा टाइम इज देयर इन जून, बट दैट्स ओके. आई थिंक 1.5 मंथ आई थिंक इतना मैटर तो नहीं करेगा. बट आपका होम टाउन कहाँ पर है भूमिका? सर इट इज इन मेरठ. सो दिल्ली आपको प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से कन्वीनियंट हो जाता है, दैट वाज द एंगल. हाँ, गुरुग्राम आपको प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से कंफर्टेबल हो जाता है. सही. एंड कैसा इंटरव्यू वगैरह लिया था आपका या फिर सीधा बुला ही लिया था कि रैंक वगैरह है? तो नहीं, इंटरव्यू लिया था. और ऑफिस में तो कंपैरेटिवली बहुत शॉर्टर था. शॉर्टर इंटरव्यू था. एंड एनी स्पेशल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप? हाँ, क्योंकि आई एम ओनली द सिंगल ट्रेनी देयर, तो अरे भगवान, तो आपके यहाँ पर भी तो ओनली सिंगल ट्रेनी? जी सर. हे भगवान, ये अलग ही एक्सपीरियंस. राशि, आपके यहाँ पर देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ ट्रेनीज ना? No sir, there are only 2 trainees, me and one more. Just 2 trainees? Just 2 trainees. Two trainees. So Bhumi, a lot of pressure on you now. So Bhumi will be having her ऐसा, Bhumi's got AR1 at executive and उनका result is awaiting. अभी 25th of August को उनका रिजल्ट आने वाला है प्रोफेशनल्स का. एंड नाउ यू लुकिंग फॉर आर्टिकलशिप नाउ ना? तभी तो आपको इनसे बहुत सारे इनपुट मिल चुके होंगे कि ऐसे करना है. एक्चुअली सैंपल साइज काफी कम है, तो तीनों कंपनीज ही हैं आपके पास में अभी.
I've texted all the rankers. I think 4 अटेम्प्ट के सब पूरा लिस्ट निकाल के सबको लिंक्डइन पे परेशान तो किया मैंने श्रुति दीदी और राशि दीदी को किया है. Like I've texted both of them also on LinkedIn. And Oh, Bhumika की बात तो होती ही रहती है. Like oh, you guys are in touch आपस में? नहीं, I'm in touch with Bhumika. I'm not in touch. Okay. So some input you already have कि कैसे करनी है चीजें. And you got your elder sister, anyways. तो वो भी एक बार आपको तो एक अलग ही एडवांटेज है. चलो गजब एकदम. तो आप लोग अपने आर्टिकल में किल कर रहे हो. एकदम तूफान मजा आ रहा है. और उसके बाद में द स्ट्रगल कीप्स ऑन गोइंग. एक चीज ऐसा लगता होगा आई थिंक कि बस वो रैंक आने के बाद में थोड़ा सा रूट आसान हो जाता है. बट जब वो उसके बाद में जो डेली डिसीजन मेकिंग है वो सब है वो तो है ही है कि आपको जॉब के टाइम पे भी एक अलग प्रेशर रहेगा वापस अप्लाई करते रहे चूजिंग द राइट फर्म एंड एक अलग ही प्रेशर अदरवाइज भी रहता है दैट यू गाइस व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ना सो दैट होता है ना कि जो रास्ता नहीं लिया है उसके बाद में भी थॉट तो आता ही रहता है ना कि हम फर्म में आर्टिकलशिप नहीं कर पाए या फिर ये नहीं कर पाए ऐसा. अभी पढ़ाई पे जाने के पहले एक लास्ट चीज आगे प्रैक्टिस करने का मन है या जॉब का ही मन है. यहाँ से आते हैं सो भूमि आप ही से रखते हैं क्या मन है आगे प्लान कैसा है प्रैक्टिस जॉब नॉट श्योर. Practice, I'm 100% sure कि practice में I will not be going. तो मेरा plan तो corporate job है and or else I'll be an entrepreneur का product. जैसे किताब भी शुरू किया था when I was in 12th. तो उसका exposure I have like how to run a business and वो सब. But अगर मैं ऐसे future में if I go only, I'll go not in the secretarial domain. अलग ही like a startup I would. नाइस. ये आपके इस बारे में बताओ ना व्हाट ऐसा बिजनेस दैट यू स्टार्टेड क्या करते हो आप उसमें. I did this in 12th, मतलब जब भी 12th में तब like everyone around me was doing CA foundation का preparation and I knew कि ये तो नहीं कर रही. So that's when I started with किताबी. किताबी? Kitabhi, yes. That's Okay. the name. Customized bookmarks and pre-loved books. For example, we take it from the person who's already read the book. We sell it to the person who needs the book but they don't want to buy a new copy. So, and they get it for a very cheaper rate. We are basically the intermediary in the books department, but मतलब bookmarks बुक्स का में OLX टाइप someone has a used book the Oh. person can sell it on your platform. Nice. So you're running that business right now also. नहीं, मैंने वो 8 महीने किया till HS like till CSEET किया मैंने. I ran the business and then फिर CS executive आ गया था. I was like नहीं, this will take a lot of my time. फिर executive आ गया, फिर professional आ गया. Now I've started reading again, but अभी तक किताब ही शुरू नहीं किया है. Like once if I go, So your inclination है कि कल को प्रैक्टिस तो नहीं करनी अगर कुछ ऐसा एंटरप्रेन्योर पसंद आ गया या कोई ऐसा एरिया पसंद आ गया तो विल एक्सप्लोर. अरे नाइस. भूमिका जी व्हाट आर योर प्लान्स. अभी तक तो मेरा जॉब वाला ही है, लेकिन अभी 12 महीने हैं, देखते हैं कि कहाँ जाना है. ऐसा अभी तक मन यही है कि जॉब ही कंटिन्यू करने का इच्छा है. हाँ, अभी तक तो यही है. Yes. Rashi ji, what are your plans? Your dad is a CS, right? Yes, my dad is practicing CS. Your dad is practicing CS. Yeah, so there's always an option कि उनके साथ ही practice join कर लूँ. जी. But अभी मतलब I don't want to continue corporate also for long. I can't ऐसा work under किसी के कि ये बोलेगा तो ये करना है, ये नहीं करना है. So eventually I have to go and practice. But अभी initial few years I'm also doing my LLB. So I'm doing it from Mumbai only. So अभी और 2 साल है. Till then I'll be doing my job only here in Mumbai. I'll get experience in few other listed companies also. Get few brand names on my resume. And then eventually dad's practice to hai hai. So at least I can learn from listed companies, from big companies, and I can put it into my dad's practice anyhow in future. Speaking like a Marwadi actually, I'll tell you. आपके पूरे sentences में ऐसा वो मारवाड़ीपन हर जगह पे झलक रहा है. किसी के अंदर काम करने का मन नहीं है लंबे समय तक मेरा. और पिताजी का बिजनेस तो है ही है. नहीं, but it's a great idea actually. But he is not ऐसा pushing you into practice right now. हाँ बोलते रहे. ऑफिस मुंबई में ऑफिस खोल देते तू वहाँ बैठ जाना. आई एम फ्रॉम कोल्हापुर सो हिज प्रैक्टिस इज हियर. He's like अभी तेरा आर्टिकलशिप हो रहा है तो वहाँ पे ऑफिस खोल. मैंने बोला अभी तक रुको, कॉन्फिडेंस नहीं आया है उतना, टाइम लगेगा थोड़ा. बट ऐसा थॉट नहीं आया कि आपके डैड का प्रैक्टिस है सो यू वांट टू वर्क इनटू अ फर्म ओनली कि कल को प्रैक्टिस ही एक्सपांड करना है ऐसा था. नहीं बट कम मेरे सारा कोल्हापुर से निकलना था एंड आई वांटेड टू कम टू मुंबई. यार देखते बाहर की लाइफ कैसी होती है, हाउ कॉर्पोरेट वर्क्स, हाउ जो रील्स में देखते ना कांच की बिल्डिंग्स एंड ऑल. चलो जाते देखते. ऑफ कोर्स बाहर से अच्छी लगती बिल्डिंग्स, अंदर से इट्स ऑल लाइक वर्क. बट ठीक है, इट वाज फन. आई हैड लाइक वेरी गुड 21 months.
Initially, for my training, I was at JM Financials, JM Okay. Financial Limited for 6 months. Then I left and I joined Aadhaar due to some reasons. But my time at Aadhaar was very nice. Like work-wise, fun, the working environment, everything was very nice. Like all the MD, CEO, your executive vice president, everyone was approachable. You can go to their cabin anytime, even if you have any doubt. So there was not कि ठीक है तुम इनसे नहीं मिल सकते हो. Anytime you can go to anybody's cabin and ask anything, whatever you wanted. Actually, That I was think really nice. your point was very fair. Going to a mid-sized company has its own perks also. Yes. मतलब it might not look so lucrative on the CV, but it has its CV, own right. perks. So Yes, that's fair, that's yes. fair. वही आप जो भी चुनोगे ना तो कुछ तो छूट जाएगा तो वो कुछ माइंडसेट तो में छूट होके होना चाहिए जाएगा. ये कुछ छूट Right. जाएगा but that's okay ऐसा है. That's Yes, yes, okay, yes. yeah. श्रुति क्या प्लान है आपका प्रैक्टिस जॉब So for initial few years, I want to continue in the job only. After that, we can. My brother is also a CA, so we can plan to start a firm practicing. अरे सही 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 भारी एकदम. अब गुंडे अब आप लोगों को परेशान करता हूँ मैं थोड़ा सा. मुझे पता है कि आपने प्रिपरेशन के बारे में ऐसा बहुत बार शायद बात कर भी ली होगी और a few of you might want to forget it कि हो गया वो समय जा चुका है. But let's talk about the preparation a little because ज्यादातर बच्चों को ये बहुत हेल्प करता है. मतलब क्या होता है एक टाइम के बाद हम टीचर जो बोलते हैं ना वो बच्चे को इम्यून हो जाते हैं. वो उनको लगता है कि टीचर्स तो बोलते रहते हैं ठीक है ना बट व्हेन दे स्पीक इट फ्रॉम देयर पीयर ना तो वो ज्यादा उसका अब्सॉर्बिंग लेवल ज्यादा हो जाता है. तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोग पर्सनल लेवल पे भी अपने जूनियर से बात करते ही होंगे तो वो अपने सीनियर की बात को ज्यादा डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर पाते हैं रेदर देन अ टीचर. ऐसा क्योंकि टीचर का ऐसा वन टू मेनी वाला कम्युनिकेशन होता है तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे लिए एकदम आइडियल बात नहीं हो रही है. बट जब आर्टिकलशिप के बारे में या फिर प्रिपरेशन के बारे में वो अपने पीयर से सुनते हैं रैंकर से सुनते हैं तो उनको लगता है कि हाँ इट इज डूएबल. और एक खास चीज क्या है कुछ बच्चों को तो क्या लगता है कि रैंकर तो अलग ही दुनिया से आते हैं. मतलब वो ऐसे एक दूसरे वैसे नॉर्मल बात नहीं करते हैं वैसे नॉर्मल घूमने नहीं जाते हैं वो हर एक डिसीजन सोच समझ के लेते हैं. सो when you get into a informal सा Zoom call ना तो they also realize कि ऐसा नहीं है. मतलब we can also do it ऐसा कि अगर हम लोग थोड़ी चीजों को स्ट्रेट कर लेंगे तो चीजें हो पाएगी ऐसा. A few of you might be one of those जो बचपन से स्कूल का रैंक कर रहे हो टॉपर में. A few of you might be कि शुरू से नहीं थे कभी एकदम जोन चेंज हुआ मन इंटरेस्ट आया सही समय पे पढ़ लेते हैं नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ता है. आई थिंक हर एक स्टूडेंट अपने अपने रिस्पेक्टिव व्यक्ति से कनेक्ट कर लेता है तो काफी प्यारी चीज हो जाती है. तो अब प्रेपरेशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा ज्यादा नहीं ज्यादा समय नहीं लूंगा. एक पार्ट ये कि जब आपके एग्जाम्स के आखिरी के 3 महीने थे तब आपने कैसे प्लानिंग की और दूसरा पार्ट रखेंगे कि जो एग्जाम के 7 दिन या 9 दिन जैसे भी अपन एग्जाम दिए होंगे तब किस तरह से प्लानिंग की थी अपन ने कैसे उसको मैचअप किया तो ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है ना. शुरू करते हैं इस बार भूमिका जी आपसे. जो लास्ट के 3 मंथ्स थे जब आपके एग्जाम सिर पे होते हैं आखिरी के 3 महीने जब पूरा अपने ऊपर आ जाता है एक प्रेशर जनता एक तो कोई ना कोई मिल जाता है कि मैं 15-16 घंटे पढ़ा था ऐसा कोई किसी से सुन लेते हैं तो वो आखिरी के कुछ टाइम को कैसे मैनेज किया था कैसे प्लान किया था प्रिपरेशन को. आखिरी के जो 1-2 महीने थे उसमें तो प्योर सेल्फ स्टडी थी और वो जब हो पाई क्योंकि लेक्चर्स को देखते देखते ही मैं रिवीजन वाला काम जारी रख रही थी. मेरा ये था कि अगर लास्ट में सारा याद करने का और रिवीजन का काम रखूंगी तो वो एक बल्क क्रिएट हो जाएगा जो कि एक प्रेशर तो लाएगा. तो ऐसा होता था वीकली वाइज जो भी चीजें लेक्चर्स होते जा रहे हैं चैप्टर्स होते जा रहे हैं उनको रिवाइज करती जा रही हूँ. तो लास्ट के जो प्योर 2 मंथ्स थे वो मेरे रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही थे. अच्छा जो हमारा प्रोफेशनल वाला था वो न्यू अटेम्प्ट था न्यू सिलेबस वाला था तो उसमें थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ था तो जो स्कैनर्स वगैरह थे उनको लेने का भी इतना कोई यूज नहीं था. जी तो मैंने तो क्या किया था जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं एक वेबसाइट थी जीएसटी की गुंटूर करके तो उस पे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी ओल्ड अटेम्प्ट वाले थे हमारे लिए एप्लीकेबल थे उनसे ही क्वेश्चंस वगैरह देख के आंसर्स का वैसे प्रैक्टिस किया. और जो एग्जाम्स के दौरान कैसे हुआ कि क्योंकि अच्छे से रिवीजन तो हो गया था तो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल चीज थी वो ये थी कि ऑलमोस्ट मैंने 6 घंटे की स्लीप तो ली थी फॉर एवरी और वो पेपर. बहुत इम्पोर्टेंट जी ग्रेट भारी. क्योंकि इससे क्या था कि आप 6 घंटे सो लेते हो आपको सब कुछ याद होता है तो माइंड रिफ्रेश रहता है. ये नहीं होता कि अगले दिन ना कई बार ये होता है कि हम याद करके गए हैं और माइंड सही से रिफ्रेश नहीं है तो जो चीज आती है वो भी नहीं लिख पा रहे हैं. तो मुझे ये चीज पहले से एक्सपीरियंस थी 10th 11th में ये चीज हो चुकी थी
तो मुझे ये पता था कि 6 घंटे की स्लीप तो लेनी लेनी है। पूरे साल भर पढ़ा है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर एक पेज नहीं पढ़ूंगी तो बिल्कुल माइंड से स्किप हो जाएगा। तो वो चीज थी, एक टाइम मैंने सेट कर लिया था कि इतने बजे तक जो जो होता है कर लेती हूँ, उसके बाद स्लीप लेके पेपर दे के आना है। और मैंने ये चीज अपने भाई के साथ भी देखी हुई थी, उसका भी बोर्ड जो है उसके, तो वो पूरी रात भर उठा रहा, पूरी रात उसने पढ़ाई की। और वो बताता है कि पेपर में जाके वो लिटरली सो गया है क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाई है। तो मेरा ये था कि ठीक है, नींद पूरी होनी चाहिए, और पूरे साल भर पढ़ाई की है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प कर कर देती है। सही है। सो और मुझे बताओ, व्हेन यू वर स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स, तो डिस्पाइट ऑफ दैट यू वर एबल टू कंप्लीट द एक बार एंटायर सिलेबस, और देयर वाज सम पार्ट व्हिच यू वर नॉट एबल टू टच, यू वर एबल टू कंप्लीट? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा हो गया था, क्योंकि मैंने जो रिवीजन के टाइम पे क्या किया था, पहला रिवीजन डिटेल था, उसके बाद मैंने पेपर से कुछ टाइम पहले एक ऐसा रिवीजन किया था कि अपने आप को मान के कि नेक्स्ट डे मेरा पेपर है, तो वो मैंने एक ना मॉक प्रेपरेशन कर ली थी एक दिन पहले की। तो वो बस देखना देखना था, और जो अपने नोट्स बनाए हुए थे उनको ही, सेम चीज को जब हम कई बार पढ़ते हैं तो वो ये हो जाता है कि देख लिया देख लिया देख लिया। ग्रेट। सो लाइक 7 डेज में 7 पेपर जब एग्जाम में थे, उसके पहले आपने खुद के लिए 7 या 14 डेज रिजर्व किए थे, जिसमें यूड फेल्ट जैसे कि अगले दिन ही पेपर देना है, ऐसे करके आपने एक बार 24 आवर्स में रिवाइज किया था। अरे बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, नाइस। एंड कितने समय पहले क्लासेस बिल्कुल खत्म हो गए थे? प्योर सेल्फ स्टडी का कितना समय मिला था? 2 महीने पहले हो गई थी सारी क्लास। यू हैड 2 प्योर मंथ्स फॉर सेल्फ स्टडी, ऐसा? एंड और जब मैं क्लासेस भी लेती थी तो वो रिकॉर्डेड होती थी, तो जैसे कभी कभी होता है ना 1.25x कर दी, 1.5x कर मत दी, करो, तो ये मुझको कट करना पड़ जाएगा, ऐसी बातें मत बोलो आप, ठीक है? नहीं नहीं, I'm just kidding, I'm नहीं just kidding. नहीं, जहाँ पर जरूरी है वहां पर। वहां पर 1.25 करके आप यू हैड पुश्ड अ लिटिल। बट आपका एक की था कि आप जब लेक्चर्स लेते थे तब साथ में रिवीजन आप बहुत अच्छे से करते थे। सो आपको लेक्चर्स में बड़ी समय लगा, एंड में प्योर सेल्फ स्टडी आपको 2 मंथ से मिला, बट उसके साथ साथ में आपका एक बार रिवीजन हुआ था। देन लेक्चर्स खत्म होने के बाद में एक डिटेल्ड रिवीजन, उसके बाद में एक और उसके मॉक बाद एग्जाम को फील लेते हुए रिवीजन, एंड देन द फाइनल और बीच एग्जामिनेशन। में छोटे मोटे तो हो गए थे, क्या हो गया था? छोटे मोटे रिविजन्स तो बीच में चल ही रहे थे। बीच में चली रही थी ऐसे? अरे मैम, तूफान एकदम। लास्ट चीज, कुछ ट्रबल आया था कि आखिरी एग्जाम के टाइम पे? कुछ पर्सनल ऐसा, फैमिली लाइफ, हेल्थ वाइज, पर्सनल वाइज, या फिर सब बाय गॉड्स ग्रेस स्मूथ था? नहीं, मेरे एलएलबी के एग्जाम्स आ गए थे थोड़े टाइम पहले ही, उससे 10 दिन पहले। तो मुझे पहले पता चल गया था, तो उस हिसाब से मैंने सिस्टमाइज कर लिया था। लेकिन वो होता है ना, जब आपके और कोई एग्जाम्स आ जाते हैं तो इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो एक तो वो चीज थी, एक चीज थी कि प्रोफेशनल के एग्जाम्स में मुझे वो प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया था, एग्जीक्यूटिव की रैंक वाला। तो वो यस। वो नहीं, यू टू एक्चुअली ट्राई एंड गेट इट ऑफ योर हेड, बट इट इज डिफिकल्ट। वो कहीं ना कहीं से अपन को खुद को, कोई नहीं भी बोलता है ना, तो अपन आ को ही एक जाता है, कोई फील कोई होता है। नहीं भी कह रहा होता है तो भी वो खुद आती है चीज। जब पेपर दे के आते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, पास हो जाएंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं से आ रही होती है कि पिछली बार तो रैंक 1 आई है, इस बार पास हो जाएंगे सिर्फ। यस, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यार, वो होना नहीं चाहिए, बट कितना भी उसको अवॉइड करो, वो पार्ट ऑफ इट इज देयर, इज देयर, इज देयर। तो एलएलबी के एग्जाम्स आपके सीएस प्रोफेशनल एग्जाम के कितने पहले थी? तो मेरे ख्याल से 5 दिन पहले ही खत्म हुए वो, हे लेकिन वो भगवान। कॉन्टिन्यूस थे तो उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ। बट एक जोन था, पर वो आपने पहले से प्लान कर लिया था, तो हैंडल हो गया। हम्म। हाँ, पता नहीं कैसा होता है, बट जनरली बच्चों के साथ घर में कोई शादी हो जाएगी, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, समथिंग हैपेंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यार गॉड नोज व्हाई, बट समथिंग हैपेंस इन द एग्जामिनेशन, ऐसा। बट इट्स अ ग्रेट जर्नी, बहुत ही भारी भूमिका, बहुत भारी, बहुत भारी, बहुत भारी। आई विल हिट टुवर्ड्स राशि नाउ। राशि, Yes, sir. सेम थिंग, लास्ट पे 2-3 महीने, 4 महीने जो भी समय मिला था, कितना समय मिला था प्योर सेल्फ स्टडी का वैसे आपको? Pure 2.5 months. 2.5 months. March 15 तक तो लेक्चर्स ही थे, जी। देन उसके एंड जून 1 से तो एग्जाम्स ही थे। सो मार्च, हाफ मार्च, अप्रैल एंड मई, इतना टाइम मिला था। And- सो लेक्चर्स अराउंड सितंबर में स्टार्ट हो गए थे, मतलब अगस्त के रिजल्ट्स के बाद सितंबर में स्टार्ट हो गए थे। तो इनिशियली 4-5 मंथ्स तो लेक्चर्स ही थे, मतलब दिसंबर तक सिर्फ आई वाज वाचिंग लेक्चर्स, ऐसा कुछ नोट्स भी नहीं बने थे।
फिर जब जैन आया तब ऐसे एकदम क्लिक हुआ, शिट, 5 ही महीने अपने हाथ में अब, आई शुड स्टार्ट मेकिंग माय ओन नोट्स. फ्रॉम जैन आई स्टार्टेड मेकिंग माय नोट्स. मतलब थोड़ा बहुत रिवीजन करना स्टार्ट किया, एटलीस्ट आज जो लेक्चर्स हो रहे वो तो मैं कवर कर लूं ऐसे करके. एंड देन आफ्टर फेब आई वाज लाइक अभी तो 3 ही महीने हैं, आई हैव टू क्लियरली फोकस ऑन दैट. So during my time, I had 9 subjects because and 2 were open books. I was like, ठीक है, open book manage हो जाएगा. सर ने भी इतने अच्छे से पढ़ा दिया है. He has shown how to write during exams, how to mark. So all of that was done. So open book का इतना tension नहीं था. Remaining 7 subjects. So I was like, I'll divide. At least I should give 1 week for each subject for the first main revision. So I gave like first week. उसमें भी कुछ subjects में portion cover ही नहीं हो रहा था, even in 7 days, because it was a detailed revision. So I was like, ठीक है, जितना 7 days में cover होता है उतना will keep, जो remaining है will start in the second revision. So I started my second revision somewhere in April, mid-April. That time I gave like just 4 days for each subject. So I have reduced the time कि अभी कम time में I have to cover all the portion. So ऐसे करके I completed my second revision, and third revision I was like quick within 2 days the revision should get पूरा start to end होना ही चाहिए. Then that was also done, and along with that I started reviewing the past question papers also from my second revision, not during my first revision. I opened the papers during my first revision and I was like कि कुछ I was not able to answer a single question because just revision ही हुआ है. I was like नहीं, अभी सारे papers देख लिए तो और will get demotivated कि कुछ आ ही नहीं रहा है. So I was like ठीक है, second third revision का wait करते तब तो I'll able to answer questions. Then during second revision I was able to really connect the dots. ठीक है, ये लिखना है, ये part आएगा. Then third revision was also very smooth. ठीक है, हो गया था almost cover. And during the last 9 days, the toughest part, because initially 4 days during the four exams, I was not well. Like my health was really very down, and my parents were also not around me. They had gone for some function or something. During the examination? Yeah, like during the first 4-5 examinations. Like my grandmother and my uncle aunt were at home, but parents नहीं थे, and even my siblings weren't at home. So और बुरा लग रहा था यार, मेरे को भी जाना था, but ठीक है, बस I can't miss my exams. And I have that habit कि I can't study alone in a room. I need 1 or 2 people sitting कि ठीक है, even we exist, you are not studying alone. So वैसा था. हाँ, वैसे अकेले पढ़ाई नहीं होती, अकेले मेरे को रूम में I can't stay alone at room. So I was like, and then जब भी एग्जाम से तब nobody was at room. I was like यार और पढ़ाई नहीं हो रही है. And I was like, I called my cousins, यार तुम just आके बैठो, कुछ मत करो, just stay there, be there. ठीक है, हम है रूम में, ठीक है. Then I started preparing. थोड़ा टैक्स पेपर में प्रॉब्लम हुआ because I was not really very well. I had to go see a doctor. But post that my parents also came back home, and then I was like, ठीक है, now I can give. And preparation wise, my notes were ready. मैं खुद से हाथ से लिखे हुए notes for almost 7 subjects. Open book के लिए I didn't prepare any notes as such, but बाकी 7 subjects I had my notes, very precise notes कि ये करना है. So जब एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना होता है, I had opened my main book and my notes. So main book में ठीक है, ये important है, ये important है, you can skip this part. जोर से आवाज मत करो, but be there. ऐसा लगता था सिर्फ मैं ही अकेली पढ़ रही हूँ, बाकी सब मजे कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं. I'm like नहीं, तुम सामने बैठो यहाँ पे. So my mom or somebody used to be there. ऐसा कोई, even during night when I used to study till 2-3, lights were on. I was like, मम्मी आप यहीं पे सो जाओ, I study here, but don't go anywhere. बहुत बढ़िया. तो आपको एक ग्रुप लगता है पढ़ाई कराने के लिए. बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा. We have, I understand people have some odd habits. This is one of them. Nice. And आपकी प्रिपरेशन का तरीका था, आप एक सब्जेक्ट उठाते थे, फर्स्ट डिवीजन में 6 दिन बड़ी 7 दिन दिए, सेकंड डिवीजन में 4 दिन दिए, बट 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम. Yes, 1 subject at a time. 2 सब्जेक्ट नहीं, एक सब्जेक्ट लो. I used to keep target कि ठीक है 18 चैप्टर्स है, उसमें से 2 बड़े चैप्टर्स है, भले ही एक दिन यू कीप फॉर दैट 1 whole चैप्टर, बट ट्राई टू कवर मैक्सिमम. एंड फिर ठीक है, अब सपोज 2-3 चैप्टर छोटे हैं तो उनको एक दिन में ले लिया. मतलब प्रायोरिटी वाइज, ऑर्डर वाइज, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें से आएगा ही आएगा, यू कैन स्किप ओनली, वो पहले ले लिया. एंड बाकी चैप्टर्स जो क्लास में टीचर जब पढ़ाते तब भी ऑलरेडी इतनी बार वो दिमाग में बैठ चुका होता है कि उसको सिर्फ यू जस्ट गिव 1 रीडिंग तो हो जाता है. कुछ चैप्टर्स वैसे थे, कई जगह पे बहुत सारे फॉर्म्स भी थे, तो ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई थी कि ये फॉर्म से इतने दिन में यू हैव टू फाइल दिस फॉर्म एंड दिस इज द पर्पस ऑफ द फॉर्म.
So I Yeah. already had that list. तो उतना So during your lectures and January February आपने resources बहुत अच्छे से set करके रख लिए थे. set कर देते हैं. Summary notes से लेकर Yes, form से yes, लेकर highlighting से yes. लेके so that you were Yes. very well prepared during the last 2.5 months. Yes, I still have my notes with me. All the notes from executive, final, सारे notes हैं. Okay, you kept executive and everything. Yeah, I have all the notes with me. So कभी शायद ऑफिस में भी काम आ जाते होंगे या नहीं? ऐसा तो नहीं मतलब यहाँ पे पड़े ऑफिस में ऐसा तो काम नहीं आते हैं. बट पता नहीं, I have that habit of keeping the things, collecting the things, that saving वाला. तो अभी भी all notes, all question papers also, I have my own question papers also. I have not thrown my question papers, my admit card, everything is with me only. ये भगवान एकदम सोनिया की तरह आप लोग सबको संभाल के रख रखा है. Yes, everything. ए भूमिका, when you used to study, you used to also take one subject at a time क्या? नहीं सर, मुझसे ना एक सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ने वाला चीज नहीं हो पाती थी, तो मैं 2 सब्जेक्ट्स का कर लेती थी. जैसे आधे दिन में एक चीज पढ़ ली और आधे दिन फिर एक सब्जेक्ट पढ़ लिया. वो सेम डे एक ही सब्जेक्ट चल रहा है तो वो थोड़ा सा ना बोर्डम आ जाता था. नहीं तो आई स्पेसिफिकली आज इसलिए क्योंकि क्या होता है जब बच्चे इसको देखेंगे ना तो उनको एक स्टैंडर्ड सेट नहीं करना चाहिए. यू नीड टू नो योरसेल्फ, स्पेशली व्हाइल राइटिंग प्रोफेशनल्स. यू ऑलरेडी गिवन एग्जीक्यूटिव, सो यू नो योरसेल्फ ना कि मैं कैसे अच्छे से पढ़ पाता हूँ. तो उसको ध्यान में रखते हुए शुड प्लान. बट हाँ, इट इज जनरली वेरी रिस्की टू स्टडी वन सब्जेक्ट इन वन गो बिकॉज फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है ज्यादातर बच्चों की. सो यू शुड बी वेरी ऐसा स्ट्रॉन्ग हेडेड कि हाँ मेरे लिए वर्क करता है, देन यू शुड गो फॉर इट. Otherwise, Bhumika used to study 2 subjects at a time. Nice. अब श्रुति जी आप पे आ जाते हैं. आप भी इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं. You used to study 1 subject at a time या फिर कैसा? No, sir, 2 subjects. 2 subjects एक टाइम पे. In a day. Fair. And आपको सेल्फ स्टडी का कितना टाइम मिला था पूरे So लेक्चर्स I होने के बाद? completed my classes, few classes in July and few classes in August. So I got around 3 months. 3.5 months for self study. In that I made a timetable. जैसे इतने दिन बचे हैं और इतने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, उसमें से ओपन बुक को कम थोड़ा सा टाइम देके और बाकी सब्जेक्ट से डिवाइड करके कितना 3 रिवीजन 4 रिवीजन के हिसाब से कितने डेज अप्रोक्सीमेटली मिल रहे हैं. फर्स्ट रिवीजन में थोड़े ज्यादा दिन एक सब्जेक्ट के लिए, फिर सेकेंड में उससे थोड़े कम और फिर थर्ड में 2 दिन में कवर करना था, ऐसा था. और same with those 9 days also, I approximately got 8 hours for that 1 day study. तो उसमें कैसे आपको चैप्टर्स को जिसमें ज्यादा वेटेड है उसको पहले कवर करना है और बाकी एक बार मॉड्यूल को गो थ्रू करना है ताकि यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि यू नो एवरीथिंग. तो आपने एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ देख लिया है तो आपको वो क्लिक हो जाता है एग्जाम में जब आप पेपर लिखते हो. नहीं तो एग्जाम के एक दिन पहले कैसे करते थे आप बता रहे हो? सर वो 8 आवर्स मिलते थे अप्रोक्सीमेटली, मतलब 6 आवर्स की स्लीप जैसे भूमिका ने बोला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा 8 आवर्स अप्रोक्सीमेटली मिलते थे. उसमें आपको अपना जो भी है मतलब चैप्टर वाइज या मॉड्यूल वो जो आपका होता है कि इसमें ज्यादा आपका कवरेज होगा पेपर में, इसमें कम होगा, तो उस हिसाब से डिवाइड करके पहले जो इम्पोर्टेंट है उसको एक बार गो थ्रू कर लिया और रेस्ट जो है वो आप जैसे कार में आप ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे देख लिया या क्विकली आपने जब भी आप रेडी हो रहे हो तब देख लिया वैसा. तो यू यूज्ड टू रीड अप टिल द लास्ट गो, मतलब एग्जाम हॉल में एंटर होने तक पढ़ाई करते थे श्रुति? हाँ नहीं सर, एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद नहीं देखना, बस जब आप ट्रैवल कर रहे हो तब तक. तो एक बार सेंटर पे पहुंच गए, लास्ट 15 मिनट्स टू योरसेल्फ, तब नहीं पढ़ते थे? यस. भूमिका एंड राशि, आप लोग कब वो कैसे बंद कर देते थे? चल भूमिका, राशि स्टार्ट. जब बेल बज गई है कि भी अंदर जाना है तब तो यू आर वन ऑफ देम, वो लास्ट गो तक वो जो होता है ना एकदम लास्ट गो तक ऐसे नजर घुमाते हुए जाते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ पेज पलटते रहो. दैट पर्सन. कुछ और होना हो कम से कम मेंटल सेटिस्फैक्शन रहता है. हाँ, आई बिलीव दैट ये पिक्चर मेमोरी वर्क्स. लाइक मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले ये पेज पलटा है, इसी में से कुछ आ गया तो लाइक यस अच्छा हुआ मैंने ये लास्ट पेज पलटा, इसी में से एटलीस्ट आई वाज एबल टू राइट 2 sentences. तो पिक्चर मेमोरी जो मैंने खुद के नोट्स भी बनाया ना, जैसे एग्जाम में क्लिक होते मैंने यहाँ पे कुछ तो लिखा था, समथिंग और द अदर, इस कलर पेन से मैंने कुछ तो लिखा था, याद आ रहा है, देन याद आ जाता है ऑटोमेटिकली. नहीं आई एग्री विथ यू ऑन दिस. तो मतलब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आल्सो तब आई लव्ड दिस. ऐसा मतलब अपन को याद आता है कि टॉपिक पढ़ा था, पेज के इस कॉर्नर में कुछ ग्रीन कलर में कुछ था. हाँ, दैट इज द रीजन मैं हमेशा गाली खाता हूँ अकेडमी से. मेरे नोट्स आपने देखे होंगे ना तो वन साइडेड ब्लैंक रहता है.
Yes, तो वो yes. उसी पर्पस के लिए रखा है हमेशा, क्योंकि वहां पे सब कुछ लिखाते हैं और वो ऐसा समझ लगता है वो पिक्चर मेमोरी याद आता है, ये टॉपिक था, उसका एक चार्ट यहाँ पे था, यहाँ पे Yes, 6 yes. पॉइंट लिखे थे, ये इतने पॉइंट्स थे, हाँ, तो वो पिक्चर मेमोरी इट रियली हेल्प्स, इट रियली हेल्प्स। आई yeah, आल्सो बिलीव really सो। helps. बहुत भारी। एंड भूमिका, आप कब किताब को रख देते थे? मैं जब सोने जा रही होती थी तो जब मेरा हो जाता था कि अब जितना पढ़ लिया ठीक है, अब सुबह नहीं खोल के देखूंगी। लेकिन जैसे कोई सब्जेक्ट जिसमें ज्यादा है थोड़ा सा, जैसे कि सीएमए डीडी हो गया, सीआरबीआई हो गया, तो उसमें ये होता था कि सुबह थोड़ा उठ के आधा घंटा जो भी थोड़ा बहुत रह गया है वो देख लेती थी। लेकिन फिर ट्रैवल वगैरह में और जाके वो नहीं देखती हुई मैं, तो फिर आपने मेरा हो जाता था। मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स में आप रात को जो पढ़कर सो गए, फिर आप उठते थे एंड देन बुक को हाथ ही नहीं लगाते थे? माय गॉड, भगवान, ये तो बहुत ही तूफान है। एंड देन यू जस्ट गेट रेडी एंड गो फॉर द एग्जाम, दैट्स इट। और एक किलर हो आप, बहुत ही तूफान, बहुत ही तूफान। भूमि, अब आप पे आते हैं। सो आप यूर ऐसा बाय योर फेस ऐसा लगता है कि आप एग्जाम में ज्यादा सोए नहीं थे, बिकॉज जब भी कोई बोल रहा है कि मैं 6 आवर तक सोई थी तो योर फेस चेंजेस। सर आवाज आ रही है आपको भी? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? आपको आवाज आ रही है? नहीं, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मेरे को यहाँ पे कब से आ रहा है कि अनस्टेबल नेटवर्क, तो आई थॉट कि मेरी तो आवाज। आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो जरूर है, बट हम मैनेज कर लेंगे। पर आपका चेहरा समझ में आया हर बार जब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं 6 घंटे सो के गया हूँ। तो क्या किया था आपने, तो बताओ? एग्जीक्यूटिव में तो मेरी हालत ही खराब थी। लाइक आई वाज वेरी इल एंड माय मॉम यूज्ड टू लाइक शी यूज्ड टू ऐसे हनुमान चालीसा तो बोलती रहती थी कि ये वापस घर आ जाए। लाइक शी यूज्ड टू फील कि हो जाएगा ऐसे व्हेन आई गो टू द एग्जाम हॉल। बट मतलब तभी आई यूज्ड टू स्लीप। कंपनी लॉ के पेपर के पहले तो मैं 5-6 घंटे इन द डे लाइट सो गई थी। लाइक 3 बजे से लेके फिर मैं उठी 8 बजे। लाइक आई वाज वेरी इल, हाई फीवर था। फिर रात को जग के पूरा खत्म किया था। तो एग्जीक्यूटिव मुझे याद ही नहीं है कि मैंने क्या किया था एग्जाम में, क्योंकि बहुत बहुत बीमार थी। बट फिर अभी प्रोफेशनल में तो गिवन ओनली 2 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी पेपर के पहले। एंड मतलब मेरा एकदम अलग स्लीपिंग है। लाइक पूरे साल में 8-8 घंटे सोई हूँ, 8 to 10 hours every day. And when the exam came, 2 hours of sleep, then I study, then half hour of sleep, then I study, then half hour sleep. ऐसे ब्रेक में रात को 12:30 बजे सो गई। Then I wake up at 2 o'clock, 2:15. Then I complete a chunk of portion. Then I sleep for half an hour, क्योंकि बहुत थक गई हूँ। Then वापस रिफ्रेश उठती थी, फिर I used to study जितना बाकी है, फिर वापस आधा घंटा सो दिया। And then finally मतलब 6 o'clock I used to bath and everything, and घर से 8 बजे निकल। तो ऐसे स्ट्रक्चर है कि अगर नींद अभी नहीं आ रही है तो मैं नहीं सो रही हूँ वैसे। नहीं नहीं, अभी तक आप काफी एक नॉर्मल सेन व्यक्ति की तरह पोर्ट्रे हो पा रहे थे, बट सडनली नाउ इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव कि आप एक नॉर्मल सेन व्यक्ति है। राशि, अभी तक मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी पागल है, कि उनको रूम में कोई चाहिए होता है और वो पढ़ते हैं, बट अब आप बीट कर रहे हो उसको। पता है कि मैं 2 घंटे सोती थी, मैं उठ जाती थी, फिर मैं थोड़ी पढ़ ली थी, फिर मैं आधा घंटा सोती थी, एंड दिस इज यू सर्वाइव द 7 days ऑफ एग्जामिनेशन। यस, एक्चुअली 7 नहीं ना सर, सिर्फ 5 ही दिन की। लास्ट के 2 ओपन बुक में तो आई वाज वेरी। तो ओपन बुक में तो आप प्रॉपर्ली सो गए थे। आई थिंक नेटवर्क गया इनका। ओपन बुक में प्रॉपर्ली सो गए थे आप। हे भगवान, भूमि यार, पर आप दिखने में तो नॉर्मल हो, ऐसा लगता नहीं आपको देख के कि ऐसा कुछ अजीब सा करते होंगे आप ऐसा ये लुकिंग। खैर वैसे तो राशि भी नॉर्मली दिख रही है, बट ठीक है ऐसा, तो आई कैन अंडरस्टैंड। हे भगवान, भूमि का एकदम या तो नेटवर्क गया है या फिर भूमि जानबूझ के नेटवर्क भेज रही है कि मुझे इस डायरेक्शन में बात नहीं करनी है बहुत। नहीं नहीं, आई वांट टू टॉक। एक मिनट सर, आई जस्ट सी इफ आई कैन चेंज द नेटवर्क। यस यस, नो प्रॉब्लम, टेक ओवर। ए भूमिका, आपका भी कुछ ऐसा है क्या, ऑड सी आदत या ऑड सा हैबिट जो अभी तक बाहर नहीं आया है? यार यू आर अ नॉर्मल पर्सन, अ रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन। नहीं, मेरे में सही होता था कि जैसे कंसिस्टेंसी नहीं बैठ पा रही थी। जैसे मैं बेड बेड वगैरह पे, या मुझसे ना टेबल चेयर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो मैं क्या करती थी कि नीचे जमीन पे कुछ कपड़ा बिछा लिया और नीचे बैठ के ज्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। हे भगवान, ये सब पागल लोग इकट्ठे कैसे हुए? तो आपसे टेबल चेयर पे पढ़ाई नहीं होती थी, नहीं हो पाती। और ऑफिस में काम कर लेते हो आप टेबल चेयर पे, थैंकफुली। वो तो मजबूरी है। अरे भगवान भगवान भगवान, हे भगवान यार। भूमिका, तो अब सुन, तो आप ऐसे जमीन पे कुछ बिछा देते थे और बैठ जाते थे और वैसे ही पढ़ते थे? So same. Even I didn't used to sit on chair and table. नीचे बैठ के ही.
स्टडी टेबल लेके नीचे ऑन फ्लोर एंड देन आई यूज्ड टू स्टडी। और अरे पढ़ते पढ़ते वो बहुत उधर ही सो comfortable जाती थी है। कितनी बार वो तो। ऐसा एक आता है ना, क्या कहते हैं उसको, एक पाटिया जैसा जिसपे आप ऐसे लगा देते हो एंड बुक्स मिल जाते हैं। यस अरे नाइस नाइस नाइस, सर मेरा भी एकदम यही ऐसा। सेम था। हाँ मेरे एग्जाम के टाइम पे तो दिसंबर था तो बहुत ठंड होती थी, तो वो स्टडी टेबल पे बैठ नहीं सकते, तो वो रजाई तो चाहिए ही होती थी। भगवान, तो आपको वैसे ऐसे नहीं, बट हाँ अपना एक थोड़ा ईवीओ नोज बना वगैरह लेते थे। समझ, बहुत ठंड थी उस टाइम पे, तो पर अभी दिसंबर बेटर है। उस टाइम तो वैसे ही था। हाँ, बेटर है भूमि, बेटर है, बेटर है, बेटर है, बेटर है। सो एलियन भूमि, आप कुछ और बताना चाहते हो क्या? हाँ, like I तो have a lot to share because like Palak is also अभी recently उसका भी दिसंबर में हुआ। तो जब Okay. I started का एग्जाम दिया ना जून में, तो फिर मैंने जून एंड मतलब जून 15 और 16 से ही मैंने CS प्रोफेशनल का पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मैंने कैसे सिस्टम लाइक व्हाट आई डिड वाज कि 16 जून वगैरह तभी लेक्चर नहीं खरीदे थे, तभी मैंने SM से शुरू कर दिया था। तो मैंने सीनियर से पूछा तो उन्होंने बोला कि एग्जीक्यूटिव से ही सिमिलर है, तो रिवीजन वीडियो से शुरू कर दिया। फिर कंप्लीट इन ओनली 40 मार्क्स SM खत्म कर दिया लाइक रिवीजन से। एंड देन जुलाई में जाके आई बॉट द लेक्चर बिकॉज आई न्यू कि मेरी बहन का दिसंबर में अटेम्प्ट है, सो आई नीड टू स्टडी सो दैट आई कैन टीच हर। तो जुलाई में आई टुक द क्लासेस ग्रुप 1 का लिया एंड देन आई स्टार्टेड विद ग्रुप 1। तो तभी मैंने दिसंबर रिकॉर्डिंग देख रही थी मैं, तो आई कंप्लीटेड CSR बिफोर अगस्त और समथिंग। मतलब CSR हो गया था बिकॉज ऑब्वियसली इतनी पतली सी बुक है तो मुझे पता था कि वो तो हो जाएगा, और बाकी सब मैं थोड़ा थोड़ा कर रही थी। तो पार्ट बी पार्ट सी ऑफ ESG हो गया था इन जुलाई एंड थोड़ा थोड़ा बाकी लाइक 1-2 चैप्टर्स आई वाज डूइंग। और फिर फाइनली जब अगस्त में रिजल्ट आया तो फिर आई स्टार्टेड विद ग्रुप 2, क्योंकि तब तक मेरे को वो कंफ्यूजन था कि मैं IBC में जाऊँ कि GST में जाऊँ, बिकॉज लाइक माई होल एग्जीक्यूटिव हाउ आई स्ट्रक्चर्ड इट वाज एक सब्जेक्ट थ्योरी एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल। सो आई एम वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, मतलब मेरे को चाहिए कि मैं सम सॉल्व करूँ या फिर मतलब ये थ्योरी से तो आई गेट अ ब्रेक। तो इसीलिए फिर देन आई वेंट विद GST, मतलब GST किया एज इलेक्टिव एंड फिर हो गया। मतलब देन एक्चुअली मैंने सारा प्रेशर पलक पे मेरी बहन पे ही डाल दिया था। आई टोल्ड हर कि इफ यू डोंट गेट गुड मार्क्स इन GST तो आई एम ड्रॉपिंग आउट ऑफ GST। वो CA कर दिया और उसको अगर मार्क्स नहीं आ रहे तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। बट देन शी स्कोर्ड exemption and then I was like okay done. fair, fair. So I'll just give you a ऐसा background to everyone जो बाद में वीडियो देखेंगे। इनकी एल्डर सिस्टर इज एग्जैक्टली 6 months आगे इनका, उनका नाम है पलक, और लास्ट रिजल्ट में उनका CS प्रोफेशनल AIS6 राइट, AIS6 आया ही है। तो इनके लिए अच्छी चीज क्या थी, वो नहीं होता अपन अगर अंधेरे में चलना तो अपने आगे किसी को भेजते हैं कि वो गिर जाएगा तो अपन को पता चल जाएगा। तो इनकी एल्डर सिस्टर इनसे 6 महीने आगे चलती है एंड शी इज अ CA, शी इज ऑलरेडी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वो CS भी कर रहे हैं। सो देन शी गॉट रैंक रिसेंटली एंड शी, सो फॉर भूमि शी इज देयर कि हाँ वो जो आगे आगे कर रही है तो भूमि के लिए काफी इजी हो जाता है पीछे कि कुछ प्रॉब्लम है तो पलक इज ऑलवेज देयर टू गाइड हर। ऐसा नाइस 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 ऐसा। और And पलक, even हाँ आप बोलो बोलो बोलो। even during the exam, मतलब I was able to give the exam and go to all the 7 papers is only because of her and my mom. वरना तो मतलब मेरे को I have a lot of anxiety issues, मतलब मैं ऐसे बहुत सोचती हूँ और मतलब she knows me, तो she is there कि अरे हो जाएगा तो कर लेना, नहीं अभी चल ऐसे। Even in SMCL मतलब second paper ही था वो तो एग्जीक्यूटिव में and I scored all India highest उसमें, but it is all because of her only, my sister only. क्योंकि रात तक मतलब रात की आई थिंक 11 o'clock हो गया था, लाइक नेक्स्ट डे CMSL का पेपर था एंड मेरे 4-5 चैप्टर्स बाकी थे। लाइक आई स्टडी ओनली फ्रॉम मॉड्यूल। पूरे 7 दिन में भी मैंने मॉड्यूल भी पढ़ा था क्योंकि पूरे साल मॉड्यूल तो अभी भी मैं मॉड्यूल भी करूंगी, इज व्हाट माय थॉट प्रोसेस वाज। नहीं इन एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल बोथ बोथ बहुत बड़ा। आई वाज लाइक नहीं मैं मॉड्यूल भी करूंगी एंड मैंने मतलब आई टोल्ड हर कि ये तो खत्म भी नहीं हुआ है, मैं कल पेपर है, बिकॉज़ इट वाज माय फर्स्ट टाइम गिविंग द एग्जाम एंड शी वाज लाइक कि नहीं तू सो जा हो जाएगा, मतलब like the whole verbal motivation and everything. She was like कुछ नहीं फेल हो जाएगा तो मैं हूँ ना, मतलब तू चल कर ऐसे। So then I think she was there and मतलब both the time she was there with me all the time. Like मुझे छोड़ने सेंटर तक छोड़ने थे, सेंटर से वापस आने। She used to bring my next subject का book also. तो मैं शाम में मतलब there is around 40 minutes का travel time लगता है मेरे घर से सेंटर तक, तो मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का बुक उसके पास रखती थी। एंड मतलब एग्जीक्यूटिव में तो उसका CA फाइनल था जब मैं एग्जीक्यूटिव दे रही थी, तो दहीसर में मेरा सेंटर आता है, बाजू में गार्डन है, तो शी यूज्ड टू ब्रिंग हर बुक एंड शी यूज्ड टू सिट देयर इन द गार्डन एंड स्टडी फॉर CA फाइनल जब मैं एग्जाम दे रही हूँ। एंड इस बार जब एक प्रोफेशनल था तब शी इज वर्किंग एट EY,
So she used to take her laptop, she used to sit in that same garden and she used to work from the garden 3 hours. Then she used to take me back home. So because वो नहीं होती तो I would not have gone only for the next paper because I know myself. अरे आपकी आवाज चली गई थोड़ी टाइम में, बट हैविंग अ एल्डर सिबलिंग इज इन इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग. हाउएवर सेम कोर्स में है तो इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग यार. मतलब ऐसा आपके चेहरे से समझ में आ रहा है कि वो इट इज डिफिकल्ट टू पुट इट इनटू वर्ड्स आल्सो. व्हाट दे पीपल, ऐसा जितना एक असिस्टेंस हो जाता है ना कि फॉर एवरी स्टेप यू गॉट समवन टू गाइड. अरे बहुत ही भारी, बहुत ही भारी, बहुत भारी, बहुत भारी. थैंक्स. सो यू हैव ट्रबल्ड हर अ लॉट. दैट्स द समरी. मतलब इस बार प्रोफेशनल में तो ट्रबल भी कर पाई क्योंकि वो घर पे ही रहती बिकॉज शी हैज टू वर्क. बट एग्जीक्यूटिव में तो आई ट्रबल्ड हर अ लॉट. नहीं बट सही है, सही है. उनका बनता भी है. बड़े भाई बहनों ने बचपन में बहुत परेशान किया था छोटे भाई बहनों को, तो वो जब बड़े हो जाते हैं ना तब वो यू टू रेसिप्रोकेट. ऐसा है. अरे नाइस नाइस नाइस. सो देयर आर लॉट ऑफ ऐसा ब्यूटीफुल थिंग्स व्हिच आई हैव गॉट टू नो आफ्टर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू ना, कि ऐसा कोई एक सिंगुलर पाथ ही नहीं है सक्सेस का. या फिर अपन रैंक की बात करें, ऑल ऑफ यू हैव स्कोर्ड AIR ones in your respective areas, however with completely different strategy, completely different background. ऐसा सबका बैकग्राउंड अलग है. हर एक का जिसको कहते हैं ना एक पिलर होता है हर एक व्यक्ति के पास, जिसके अराउंड यू कैन ऐसा बी देयर और वो पिलर के साथ में पढ़ लेते हैं. तो कुछ के लिए फैमिली हो सकता है, कुछ के लिए बड़ी बहन हो सकती है. तो इट इज वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, वेरी डिफरेंट सिटीज. मतलब आप कोल्हापुर से हैं, यू फ्रॉम मुंबई. श्रुति आप इंदौर से, राइट? Yes, sir. तो इतना भूमिका मेरठ से, इतना गजब के बैकग्राउंड, डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के साथ भी यू एज्ड इट, यू किल्ड इट. सो ऐसा द एंटायर, कभी कभी क्या हो जाता है व्हेन यू डू समथिंग ग्रेट ना, सो आपके साथ में आपकी फैमिली के इतने लोग या आपके नोन फ्रेंड्स में इतने लोग हैं ना, दे आल्सो गेट दैट पुश यार ये तो डूएबल है. मतलब समथिंग इज डूएबल, ये चीज हम भी आगे कर सकते हैं. और कभी कभी अभी तक थिंग्स आर बेटर इन इंडिया अगर हम बात करें इन बिगर सिटीज, बट इन इंडिया स्टिल अगर हम छोटी सिटीज में जाते हैं ना तो इतना इजी नहीं है. कभी कभी घर वालों को कन्विंस करना कि वी वांट टू गो टू अ बिगर सिटी फॉर आर्टिकलशिप और फॉर स्टडीइंग अहेड. सो इट डिपेंड्स ऑन अपना पर्सनल इंडिविजुअल न्यूक्लियर फैमिली का थॉट प्रोसेस कैसा है. तो अ फ्यू हैव दैट ओपन थॉट प्रोसेस कि जाओ आगे बढ़ो, एंड अ फ्यू आर स्टिल रिलक्टेंट. बट व्हेन यू गाइस किल इट ना, तो आपके साथ में इतने सारे लोग हैं ना जिनके लिए रास्ते खुल जाते हैं. एंड एक बहुत भारी चीज क्या है, ऑल ऑफ यू आर गर्ल्स किलिंग इट. ऐसा मतलब AIR 1 में भी जब मैं देख रहा था ना लिस्ट, तो मुझको एक भी लड़का ही नहीं मिल रहा है. रैंकर में फिर भी लड़के कुछ मिल जाते हैं. सो इट ओपन सो मेनी डोर फॉर सो मेनी पीपल ना, इट्स रिमार्केबल एकदम. सो थैंक यू सो 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 वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम. आई ट्राइड कि मैं इसको कंसाइज 1 आवर में रखूं ताकि आगे बच्चों के लिए देखना भी आसान हो जाए. आगे अगर किसी और टॉपिक पे भी बनाना होगा, कुछ ऐसा ही कुछ अपन बच्चों के लिए बनाना चाहेंगे तो बनाते हैं. Let's meet you all again. Whenever you guys come to Pune, meet. Let's do a nice video as to detail आपकी और strategies कैसी थी, कैसे आपने किया. Bhumi, you and your sister visit Pune. ठीक है, दोनों एक दूसरे को वो करो एकदम ऐसा भरत मिलाप के, इसकी वजह से मेरा रैंक आया, नहीं तेरी वजह से मेरा रैंक आया. आप लोग ये करो अच्छे से. राशि, you also visit Pune sometime. Sure, sure, Right? sir. You're from Mumbai, है ना? Yes. और भूमिका जी आप तो दिल्ली से हैं, तो आपके लिए थोड़ा रेयर रहता होगा, बट जब भी आते हो ट्राई करो, है ना? यस, जब भी आऊंगी सबसे पहले आपसे मिलने आऊंगी. प्लीज, I'll be glad, है ना? एंड ऑल ऑफ यू हैव एन एक्स्ट्रा दिस रिस्पांसिबिलिटी आल्सो टू गाइड योर जूनियर्स इन द राइट वे. बिकॉज क्या है, अवेयरनेस की कमी बहुत है अपने कोर्स में, या फिर अपने कोर्स में एक जो कहते हैं ना एलएम सपोर्ट नहीं होता, एलुमनाई सपोर्ट नहीं होता जैसे कॉलेजेस के अंदर रहता है. सो वी गॉट एन एक्स्ट्रा रिस्पांसिबिलिटी टू हेल्प आवर जूनियर्स जनरली व्हेन इट कम्स टू आर्टिकलशिप और जनरल गाइडेंस कि भाई ब्लंडर मत करो कुछ ऐसा. तो आई थिंक अगर वैसा आप लोग करते रहोगे ना तो यू विल आल्सो डू ग्रेट, एंड आई थिंक द जूनियर्स विल आल्सो डू ग्रेट. श्रुति जी, यू आर इन इंदौर, राइट? Yes, sir. So visit Pune sometime. And hope to see you We soon. met Yes. in 2022, right? When I came to Pune for I application. remember we met. Yes. That time, तभी उसी के बाद में you started your articleship, ना? Yes, sir. Yes. I remember. I ध्यान रखो came बंदो अपना. recently in January for convocation to Pune. Yes. ध्यान रखो बंदो अपना. जीवन में बहुत आगे बढ़ो. हर जगह पे एकदम मचाते रहो. And I would love to see you guys after 5, 6, 7 years doing what you love in your life. Do whatever you love. Work in some good company. Have your own practice. Have your own preneur. Start some business. Do whatever you want to do. Stay happy. ध्यान रखो अपना बंदो. Bye. Thank you so much for your time.
Bye. Bye. Bye, sir. Bye. Bye. Thank you so Bye. much. Thank you. Bye. The Bye. pleasure is mine. Bye. Bye. Thank you, sir. Hello everyone. I think everyone is doing great and fine. So here I am to discuss about the two things, that is the last 2 or 3 month strategy as well as the last day preparation. So basically what common mistake that I've seen in the people is बच्चे ना last 2-3 months they reserve it for the revision. So that should not be the case. The revision should be something which should be inculcated in your strategy of examination from the day one. अगर आप एक टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसको आपको खुद को पढ़ना है, देन मॉड्यूल से पढ़ना है. अगर वो चैप्टर खत्म हो जाता है तभी की तभी स्कैनर लगा के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यू हैव टू राइट इट इन द कॉमन स्टडी सोर्स. द अनदर मिस्टेक दैट अ पर्सन डू इज कॉमन स्टडी सोर्स नहीं होता उनके पास, 10 जगह से 10 चीज़ें पढ़ते हैं. दैट्स वाई दे गेट कंफ्यूज एट द लास्ट मोमेंट. सो फ्रॉम द डे वन, two things is necessary. First is the revision on the parallel basis and not relying on the last 2-3 months, as well as keeping a common source of study. अगर आप किसी फैकल्टी के नोट से पढ़ते हैं तो उसको कॉमन सोर्स ऑफ स्टडी बना लीजिए, उसमें मॉड्यूल का पढ़िए. एंड इफ यू फाइंड समथिंग विच इज गिवन इन द मॉड्यूल एंड नॉट देयर इन द नोट ऑफ अ फैकल्टी, देन यू कैन राइट इट देयर. देन वंस द चैप्टर गेट्स ओवर, यू गो थ्रू द स्कैनर, फाइंड आउट कितने क्वेश्चंस क्या है और टिक लगाते जाओ उस टॉपिक पे कि इसके ऊपर क्वेश्चन आया. यू विल टिक मार्क दैट इन योर वन सोर्स दैट यू आर कीपिंग. दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड कॉन्फिडेंस. प्रोफेशनल एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस. वो तभी आएगा जितनी बार आप मल्टीपल रिविजन्स करेंगे. लास्ट के 2-3 मंथ्स में व्हाट हैपेंस यूजुअली इज पीपल, द स्टूडेंट, they complete their lectures, they complete even the module reading and their notes reading, but revision नहीं होता on the continuous basis. तो क्या होता है, when they start from the day one of the last 2-3 months, they'll be like blank, they will know nothing about it, they will not be confident about the topic, they will be like हम भूल रहे हैं. बट यही चीज़ अगर आपने डे वन से बार बार देखी भी होती, सो यू वुड हैव बीन कॉन्फिडेंट अबाउट दैट थिंग. और लास्ट के 2-3 मंथ्स जो होते हैं, इट इज़ बेसिकली फॉर रिवाइजिंग एंटायरली, गिविंग टेस्ट सीरीज, looking after the past few questions paper and revising the important topic or emphasizing on the important topic. Basically 2-3 महीने पे रिलाई मत करना for the revision purpose. Keep the common source. Now coming to the last part of the examination. जब एग्जाम शुरू होते हैं तो we don't have the gaps between the examination. So how to deal with it? That's a very important thing. So as I said, the preparation for the last day of the examination also starts from the day one. You have to keep the common source and you have to revise from that. Before the examination start now, 10 दिन पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको क्या देखना है. Either you can color mark those things, you can highlight those things. You should be aware of the things that you have to go through and you should be practical. चाहो तो वो 2-3 महीने जो आपको मिलेंगे जिसमें आप क्वेश्चन पेपर्स लगाएंगे, जिसमें आप मॉक टेस्ट देंगे अपने, उसमें आप मार्क करके लिख लीजिए कि लास्ट डे आई मे फॉरगेट दिस थिंग. अगर जो बहुत बेसिक चीज़ें हो रही हैं जो आप फाउंडेशन से पढ़ के आ रहे हो, या फिर जो चीज़ आप खुद से भी लिख सकते हो, आपको पता है वो फीड हो चुकी है माइंड ऑन हार्ट में, दैट इज समथिंग दैट नीड्स नॉट टू बी रिवाइज्ड. आपको एग्जाम में याद आ ही जाएगा, भले आपको एग्जाम के एक दिन पहले याद नहीं आ रहा, बट देयर आर फ्यू थिंग्स लाइक लिमिट्स और द फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अब जैसे कि आपने जो वन सोर्स बनाया है, एज आई सेड, स्कैनर में कोई क्वेश्चन आ रहा है, टिक मार्क दैट इन योर सोर्स ऑफ स्टडी, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बार बार क्वेश्चन आ रहा है, सो वो उस पर आपका फोकस जाएगा लास्ट डे पे. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. लास्ट डे आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो, दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड. एंड आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस देयर वाज वन सब्जेक्ट which I couldn't revise one day prior to my examination, but I got exemption in that. It's all because of the parallel revision that I did since day one and the notes that I made, the revision that I did in the last 2-3 months, the question paper that I solved. So that's it. That's for all, and all the very best for upcoming examinations.